हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करने वाली हूँ, कुछ सरप्राइजेस शेयर करने वाली हूँ। और जो नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है वो है न्यू एडिशंस इन माय टेरेस गार्डन। तो किसी ने सच ही कहा है, खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती हैं, खुशियाँ आपके चारों तरफ है, बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। खुशी हर उस चीज़ में है जो आप रोज करते हैं। हर एक इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपको खुशी देता है। तो बस अपने चारों तरफ नज़र उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इन नन्हे नन्हे पौधों ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं और मेरे टेरेस गार्डन में क्या न्यू एडिशंस आए हैं। तो फ्रेंड्स, 6 न्यू प्लांट्स इन माय गार्डन, इन माय टेरेस गार्डन। लेट मी शो यू। दिस इज अ हैंगिंग पॉट और इसमें बहुत ही सुंदर पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो दिस इज पिंक बाल्सम। दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पेशंस और टच मी नॉट or jewel wheat, and it is an annual flowering plant found in eastern Africa or tropical countries. The height can increase to 10 to 16 inches. It needs regular watering and humid weather conditions. It is also used as herbal medicine for bee stings, insect bite, wounds, etc. This is another indoor plant and the leaves have a pink pattern on them. This plant is also known as polka dot plant. It's a common name of this plant. So this pink polka dot plant is native to South Africa, Madagascar and Southeast Asia. The spots often merge into large areas of color. So you need bright to medium indirect sunlight. We have to water it regularly. A dry soil will cause leaves to fall. We have to fertilize it monthly. It can grow up to 30 inches high and wide. This is red color bougainvillea plant. We are going to pot it in another pot. So this bougainvillea is an evergreen flowering plant. It will bear red flowers. Usually bougainvillea has bright red, pink or white flowers. It needs a lot of space to grow as it grows quite tall, and also need 6 to 8 hours of sunlight daily. A newly planted bougainvillea needs frequent watering. Later on, you can just water it in 3 to 4 weeks. This one is a red rose plant, small roses. So these miniature or mini rose plants are easy to handle and they are common house plants. They need a lot of sunlight and you need to water them in 1 or 2 days or twice in a week. You also need to fertilize them every 3 weeks. This is a twin colored bougainvillea plant. तो इसमें डबल कलर्ड फ्लावर, तो कुछ ऐसा लगेगा हमारा ये प्लांट जब ये ग्रो हो जाएगा। और इसको रेगुलर प्रूनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। So basically ये एक ornamental plant है and it grows well in warm climates and dry soil. So never overwater this plant. And the sap of this bougainvillea causes skin rashes, so you need to be careful about that. तो आप सब जानते ही होंगे जैस्मिन, इसके फ्लावर्स की बहुत अच्छी स्मेल होती है। So this plant needs 6 hours of direct sunlight and it loves water, so the soil should always be moist. And you need to fertilize twice a year and repot in springtime. Jasmine is also a medicinal plant, but all the parts of this plant are toxic and should not be consumed by humans or pets. Brahmi. We are going to pot it in a hanging potter. So this Brahmi plant is also known as Indian pennywort or herb of grace and is a staple plant used in Ayurvedic medicine. It grows in wet soil, shallow water and marshes. It has great medicinal properties. It is a memory enhancer, regulates blood sugar levels. It also promotes sound sleep, reduces stress and anxiety, full of antioxidants, and regular consumption strengthens immune system. It gives relief
from arthritis and gastric ulcers and prevents hair fall, dandruff and itchiness. This is the soil mix we are making for potting these plants. So now I'm going to mix all of them together, the coco peat, the vermicompost, the potting soil and little bit of garden soil जो मैंने अपने garden से निकाल के रखी थी, इसको अच्छे से mix कर देंगे and then we are going to put it in the pot. सो ये जो ब्राह्मी प्लांट है इसको हमने इस पॉट में लगा दी है. ओरिजिनली हमारा प्लान था कि इसको हम एक हैंगिंग पॉट में लगाएंगे, बट आई थिंक इट नीड्स स्पेस टू ग्रो, तो इसमें से काफ़ी स्पेस मिलेगी. तो ये जो बोगनविलिया प्लांट है ये काफ़ी बड़े पॉट में आया था, तो हमने इसे थोड़ा सा कंपोस्ट मैन्योर वगैरह डाल के छोड़ दिया है इस पॉट में. ये जो पोल्का डॉट प्लांट था ये बहुत ही छोटे पॉट में आया था, तो हमने इसे दूसरे पॉट में रिपॉट कर दिया है, थोड़ा बड़ा पॉट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ग्रो बिग. जैस्मिन को भी हमने रिपॉट किया है क्योंकि इसको भी स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो इसे हमने बड़े पॉट में डाल दिया है. और ये बोगनविलिया जो पॉटेड नहीं था इसे हमने एक बहुत बड़े से पॉट में डाला है क्योंकि इट्स गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट नीड्स स्पेस टू ग्रो. In this corner I have put the 4 plants, these 4 plants, क्योंकि इस कॉर्नर पे काफ़ी धूप आती है तो इनको धूप चाहिए, तो मैंने इन प्लांट्स को इस कॉर्नर में लगा दिया है. You can see the balsam plant is still in the hanging pot. It was looking beautiful in the hanging pot, तो हमने इसको चेंज नहीं किया. Into the this side of my terrace garden, so I put those plants which need indirect sunlight, तो इनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है इन सब प्लांट्स को. सो यहाँ इनको धीरे धीरे जितनी सनलाइट चाहिए उतनी मिलती रहेगी. एंड दिस इज़ माय न्यू तुलसी प्लांट विच इज़ ग्रोइंग वेरी नाइसली. एंड दिस इज़ द रोज़ प्लांट, इसको भी हमने रिपॉट किया है. अब द जेड प्लांट हमने यहाँ लगा दिया है सो दैट एक और प्लांट इससे ग्रो हो जाए. सो आप देख सकते हैं कि ये कुछ फ्लावर्स सूख गए हैं, तो रेगुलर प्रूनिंग और कटिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. अब इसमें नए फ्लावर्स आ जाएंगे. अब इस प्लांट के ये जो लीव्स हैं येलो हो गए हैं, तो अभी वी डिसाइडेड कि इसको हम कट करके निकाल देते हैं सो दैट जो नीचे से न्यू वाला आ रहा है उसको इनफ सनलाइट मिल जाए. आज हमने थोड़े से और न्यू प्लांट्स लगाए हैं, और जो पुराने प्लांट्स हैं उनमें कंपोस्ट डाला है. अलॉन्ग विद दैट हमने वी हैव टर्न द सॉइल ऑल्सो. टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एरेशन एंड द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल. Whenever you think कि सॉइल बहुत टाइट हो गई है तो उसे थोड़ा लूजन अप कर दीजिए, और सॉइल को आप वंस अ वीक और इन 15 डेज़ थोड़ा एरेशन के लिए उसको डिग करके लूजन अप कर दीजिए. So this is how my terrace garden looks in the daytime with all the flowering and house plants. Shoot a video at night time to show you all how my garden looked at night with all the Diwali lights.
तो आई होप आपको ये न्यू एडिशंस मेरे टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे लगे होंगे। जैसे जैसे मेरा टेरेस गार्डन बड़ा होता जाएगा मैं आपके साथ सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती जाऊंगी, कैसे इन पौधों का ध्यान रखना है और कौन से पौधे टेरेस गार्डन के लिए सूटेबल है। तो इन माई नेक्स्ट एडिशन ऑफ गार्डनिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंडोर प्लांट्स एंड कौन से प्लांट्स कहाँ रखने चाहिए और किस प्लांट को कितनी लाइट की ज़रूरत है और उनका ध्यान कैसे रखें। सो मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जो मैंने नया माइक्रोवेव ख़रीदा है उसमें आई एम गोइंग टू ट्राई सम माइक्रोवेव हेल्दी रेसिपीज़, तो उन्हें देखना ज़रूर भूलिएगा नहीं। And also we are planning a small trip, a weekend trip near Bangalore. So do not forget to watch that trip. So till we meet again, stay happy, stay safe and keep enjoying life. खुशियाँ ढूंढते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।